Hello students, our today's topic is what are the methods, measures to correct the balance of payment या balance deficit. हमारा जो व्यापार में घाटा हो रहा है मीन्स वी आर अनफेवरेबल इन अ बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो इस घाटे को कैसे कम किया जाए. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट मीन्स टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट रिसीव्ड एंड टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट पेड का डिफरेंस डिफिसिट कहलाता है. घाटे का जो हमारा व्यापार हो रहा है ओवरऑल उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं. तो फर्स्ट इज increase the production. If we increase our productivity and production quality, then we are able to make more exports. Otherwise, if we have a less production, it is only for the consumption. It is not in the excess, so we can't make the exports. So first, we have to increase the production. Not only with the production, but with the quantity also. In a quantity and in quality, in both heads we have to increase our production. उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो और क्वांटिटी भी अच्छी हो. Otherwise we will not survive in the international competition. So first is to increase the production in quality and quantity both. The next is the promotion of the exports. We have to adopt such type of policies under which exports should be made easier, comfortable and comparatively at low cost. We have to decrease the different barriers, obstacles, duties and make the process very soft and smooth. The more the softer and easier is the export, the more will be our balance of payment and the balance of payment will be in our favor. Next is to promote the bilateral trade relation. If two countries have a good bilateral trade relation, then they are feeling free to import and export. If we have a trade restrictions or a trade dispute with two or more countries, we are not able to make any economical transaction with that country and it will decrease our demands in that country. So it is very much required to have a bilateral friendful relation with the world or with the other countries. Next point is to reduce the imports. If we reduce the imports which is coming from the abroad with the rest of world, then we have a less payment to that country. Now it's a problematic how to reduce the imports. We can't stop by forcefully by law because we are under the trade agreement with the world. But we have to adopt such type of policies that like issuing license for the import of the most essential goods only, which is too much required. One example, right now we have reduced the imports from the China on the different grounds. On the security grounds, we have restricted the imports of the various near about 50 F. हमने 50 ऐप चाइनीज़ के रिड्यूस कर दिए. अंडर द सिक्योरिटी grounds we have quashed the many tenders of the Chinese company. हमने बहुत सारी चाइनीज़ कंपनीज़ के टेंडर वापस कर दिए. हमने उनको बहुत ही एसेंशियल चीज़ों पे इंपोर्ट्स के लिए परमिशन दे के रखी है एंड विच इज़ नॉट टू मच एसेंशियल, वहाँ हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हैं. अभी हमने लगाए हैं, दे आर टेम्पररी, बट इट रिड्यूसेस द चाइनीज़ इंपोर्ट्स इन इंडिया. दैट मेक्स आवर business favorable with the Chinese. Luxurious goods या जो अदर गुड्स हैं उनका एक वी कैन डिसाइड द कोटा फॉर दैट इंपोर्ट्स कि यू कैन इम्पोर्ट ओनली दिस मच अमाउंट ऑफ कोटा. आप इतने ही कोटे की वस्तुओं को इंपोर्ट की लाइसेंस दीजिए. यू कैन
इम्पोज न्यू ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट, आप इंपोर्ट्स पर कुछ ड्यूटीज़ या टैक्सेस बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट इज हम इंपोर्ट होने वाली चीज़ों का सब्सिट्यूट डेवलप कर लें. इफ़ वी आर demanding Chinese toys in our Indian market and we want to decrease the import, then we have one option कि we make our self country made substitute. हम उन Chinese goods का substitute बना लें. The apps which we are demanded या imported from the Chinese, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑफर दिया कि if you build your own apps you will be awarded or rewarded. आप उसका एक इक्विवेलेंट एप्स डेवलप करिए, इंडियन मेड ऐप इन्वेंट करिए या डिस्कवर करिए, यू विल बी, आपको स्टार्टअप दिया जाएगा. दैट स्टार्टअप इज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू डिक्रीज द इम्पोर्ट. वो उसकी पॉलिसी का एक हिस्सा है कि वी आर गिविंग ए स्टार्टअप. हम इंडियन मिसाइल्स बना रहे हैं, इंडियन स्पेस क्राफ्ट बना रहे हैं. वी आर मेकिंग दिस बिकॉज वी वांट टू डिक्रीज या रिड्यूस द इम्पोर्ट्स. हम केवल एसेंशियल चीज़ों को ही इम्पोर्ट का लाइसेंस दे दें. नेक्स्ट इज डिफ्लेशन. डिफ्लेशन यानी मंदी लाना. स्टूडेंट्स, समटाइम इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री टू हैव अ डिफ्लेशन. अगर हमारे देश में पार्ट टाइम वी हैव अ डिफ्लेशन, इट मीन्स हमारे देश की चीज़ें सस्ती हो जाएंगी मंदी में, और दैट विल बी चीपर इन कंपेयर टू द फॉरेन गुड्स. सो फॉरेनर विल ऑटोमेटिकली डिमांड आवर गुड्स. तो हमारे गुड्स की डिमांड फॉरेन में बढ़ जाएगी इफ़ वी हैव रिड्यूस्ड इन द प्राइस एंड गुड्स ऑफ आवर कंट्री. इफ़ वी हैव अ डिफ्लेशन इन आवर इकोनॉमी, हमारे देश में अगर मंदी है थोड़ी बहुत, तो उससे हमारे देश की वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो जाएंगी एंड इट विल हैज़ अ ह्यूज डिमांड इन द फॉरेन एंड आवर एक्सपोर्ट विल इंक्रीज. देयरफॉर समटाइम इंडिया और ए कंट्री प्लान्स डिफ्लेशन. डिफ्लेशंस को कभी कभी प्लान भी किया जाता है. नेक्स्ट हेडिंग इज टू इनकरेज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट. If we increase the foreign investment, the inflow of the foreign currency in a domestic country will be huge. भारत में या किसी भी डोमेस्टिक कंट्री में ह्यूज क्वांटिटी ऑफ मनी विल इनफ्लो, फॉरेन करेंसी विल इनफ्लो, एंड दैट विल कॉन्सिक्वेंसली रिजल्ट इन अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट. उससे हमारे देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ जाएगा, उससे न्यू स्टैब्लिशमेंट आएगी और हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है फॉरेन करेंसी ज़्यादा आने से फेवरेबल हो जाएगा. The next is devaluation of the Indian currency. अगर हम अपने करेंसी को डिवेल्युएट कर दें, उसकी कीमतें घटा दें, इन ए फॉरेन एक्सचेंज सपोज $1 इज 80 रुपीज़, तो अगर हम उसको डिवेल्युएट कर दें, $1 इक्वल्स टू $85 कर दें, सॉरी $1 इक्वल्स टू 85 रुपीज़ कर दें, तो इंडियन करेंसी तो वीक हो गई, डिवेल्युएट हुई. इसका रिजल्ट ये होगा कि अब $1 के बदले में हमको 85 रुपीज़ देने पड़ेंगे. तो हम रुपए तो नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ सामान दे रहे हैं. अब अगर हमारे को $1 के बराबर 85 रुपीज़ का सब्स्टिट्यूट देना पड़ेगा, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, हम अब कम रुपए देंगे तो ज़्यादा माना जाएगा. अगर हमने 80 रुपये दिया तो वो माना जाएगा 85 रुपीज़, बिकॉज वी हैव डिक्रीज अवर वैल्यू. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेवरेबल करने के लिए द गवर्नमेंट एंड द RBI समटाइम्स डिवेल्युएट द इंडियन करेंसी. हमारी इंडियन करेंसी को डिवेल्युएट भी करके हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की कुछ मार्जिन को कम कर सकते हैं. ये जो डिवेल्यूशन होता है ये एक लिमिटेड अमाउंट तक हो सकता है, अनलिमिटेड तक नहीं हो सकता है. सो समटाइम बाय प्रैक्टिसिंग दिस devaluation of Indian currency increases the exports and balance of payments को favorable किया जा सकता है. The next is to increase the substitute of imports.
जो भी इंपोर्ट्स हम इंडिया में करते हैं या कोई भी कंट्री करती है, अगर हम उसका सब्स्टिट्यूट्स डेवलप करें, एप्रिसिएट करें और उसको फाइंड आउट करें, देन इट विल बी बेटर टू मेक द बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल। हम बहुत सारी पेट्रोल प्रोडक्ट्स को या इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड। अगर हम उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ लें कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का सब्स्टिट्यूट डेवलप करते हैं, सपोज सोलर कार्स या बैटरी कार्स या मोटरसाइकिल्स डेवलप करते हैं, तो पेट्रोल कंजम्पशन डिक्रीज़ हो जाएगा या ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंजम्पशन डिक्रीज़ हो जाएगा। तो हमको विदेशों को जो तेल के बारे में का पैसा दे रहे हैं वो नहीं देना पड़ेगा। सो इट विल मेक आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल। So imports का substitution is one of the good measure to control the to make our balance of payment favorable. Next is sometime we take the foreign assistance for to control the balance of payment. हम अपने बैलेंस को पेमेंट को कम करने के लिए या फेवरेबल करने के लिए या इसको मिनिमाइज करने के लिए वी टेक द हेल्प ऑफ फॉरेन कंट्रीज, लाइक we take loan, we take grants from the foreign countries or foreign institutes. हम अपने कभी कभी वित्तीय व्यापार के घाटे को कम करने के लिए दूसरे देशों से कर्जा ले लेते हैं या ग्रांट्स ले लेते हैं या वर्ल्ड बैंक से हम अपना लोन लेते हैं. दैट इज़ टेम्पररी मेथड, दैट इज़ नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, बट वी हैव टू टेक रेयर हेल्प लाइक दिस. हमको ये मदद क्योंकि if we take the loan again we have to pay interest on that, so we have to avoid this type of assistance, but it helps sometime. So